اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ڈاکٹر آصف علی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ رنگ برنگے رسیلے پھل اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ہے۔ پاکستان میں ہر طرح کے موسمی پھل دستیاب ہے۔ پھلوں میں تمام غذائی اجزاء، وٹامنز اور معدنیات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پھل کھانے سے انسان تندرست و توانا رہتا ہے۔ کئی لوگ پھل استعمال کرتے وقت انہیں چھیل دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں۔ چھلکوں میں اہم غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ پھل اور سبزیوں میں وٹامنز، منرلز، فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کئی اہم نباتاتی کیمیکلز بشمول اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم کے خلیوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چھلکوں میں فلیوونائڈز اور پولیفینولز جیسے اہم کیمیکلز ہوتے ہیں جو جراثیم کش خصوصیات کے ساتھ ساتھ جسم کی اندرونی صفائی میں مدد دیتے ہیں۔ لہٰذا صحت مند اور تر و تازہ رہنے کے لیے تازہ اور رس بھرے پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اناج کے برعکس پھلوں میں جو شکر ہوتی ہے اسے فرکٹوز کہتے ہیں، جو جسم کو قوت اور توانائی پہنچاتی ہے۔ ذیل میں عوام الناس کی رہنمائی کے لیے مشہور پھلوں کے خواص اور ان کے استعمال کے فوائد اور مختلف بیماریوں کے دوران ان کے استعمال کے بارے میں ضروری معلومات دی جا رہی ہیں۔ کھجور میں بے حد غذائیت ہے، تازہ خون پیدا کرتی ہے، ہاضم ہے، معدہ، جگر اور قوت باہ کے لیے مفید ہے، جسم کو فربا کرتی ہے، لکوہ اور فالج جیسے امراض میں مفید ہے۔ اس میں تمام غذائی اجزاء، وٹامنز اور معدنیات شامل ہیں۔ جسمانی کمزوری، پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے، گردے، مثانہ، پتا، آنتوں میں دردوں کو دور کرنے کے لیے بکثرت استعمال کریں۔ انجیر خوش ذائقہ پھل ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جلد کی بیماریوں میں مفید ہے۔ انجیر کھانے سے معدہ اور جگر ٹھیک کام کرتے ہیں، ورم تیلی دور ہوتا ہے، گلے کی خراش کے لیے بہتر ہے۔ سخت پھوڑے کے لیے دودھ میں پکا کر اوپر لیپ باندھ لیں۔ بچوں کے بال کم ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر لیپ کریں۔ انجیر کھانے سے بچوں کا قد بڑھتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے سفید دودھ نکلتا ہے۔ یہ دودھ برس لیکوڈرما کے داغوں پر لگانے سے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ انگور گرم تر مزیدار پھل ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ منقع سوکھا ہوا انگور دردوں میں مفید ہے۔ درد شقیقہ میں آدھے سر کے درد میں انگور کا جوس آہستہ آہستہ پئیں، افاقہ ہوگا۔ بچوں کو رس پلائیں، دانت آسانی سے نکلیں گے۔ چکروں کے لیے دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو تو انگور مفید ہے۔ اس کی لکڑی جلا کر پانی کے ساتھ پینے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ کھٹے ڈکار گیس اور تیزابیت کے لیے سود مند ہے۔ پپیتا قدرت خداوندی کا انمول تحفہ ہے۔ اس کے پتوں کا رس ڈینگی بخار کے لیے مؤثر ہے۔ اس سے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار فوراً بڑھ جاتی ہے۔ پپیتا پیٹ کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے، تیلی کے لیے بہتر ہے۔ پپیتا کھانے سے جلد، دانت، ہڈیوں کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ قبض کشا ہے، بچھو کاٹ لے تو اس کا تازہ دودھ لگائیں، آرام آئے گا۔ معدہ کے لیے سود مند ہے۔ رس بری کے کھانے سے بلڈ پریشر کم، کمزوری دور اور پیٹ و آنتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ سٹرس پھل تاثیر کے لحاظ سے سرد تر ہوتے ہیں۔ سٹرس پھلوں میں سنگترا، مالٹا، میٹھا، نارنگی، کنو، گریپ فروٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے کھانے اور جوس پینے سے وٹامن سی کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، پیٹ کی تیزابیت ختم کرتے ہیں۔ سیب میں فاسفورس اور فلاد زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ کھانے سے آدمی صحت مند، چست و توانا رہتا ہے۔ یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، گھبراہٹ دور کرتا ہے، نیا خون بناتا ہے۔ چھلکے سمیت کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ سیب کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، قبض کشا ہے۔ اس کے جوس میں کوزہ مصری ملا کر پینے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دماغی کمزوری اور بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ نشہ یا شراب کی عادت دور کرتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگے اور پیاس زیادہ ہو تو سیب کھائیں، انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا۔ اناناس تاثیر کے لحاظ سے سرد تر خوبصورت پھل ہے، دیکھ کر فوراً اسے کھانے کو دل کرتا ہے۔ اناناس پیشاب آور ہے، باقاعدہ کھانے سے گردے مثانے کی پتھریاں اور جسم میں موجود مضر صحت مادے سب خارج ہو جاتے ہیں۔ یرکان میں کھانے سے جگر کے افعال درست ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کے حمل بار بار گرتے ہیں انہیں اناناس کھلائیں، افاقہ ہوگا۔
जिस्म में मुज़रे सेहत गिल्टियों का खात्मा करता है। अनानास में आयोडीन वाफर मकदार में होती है, इसलिए गले के गदूद के लिए भी सूदमंद है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है। अनानास प्यास की शिद्दत को खत्म करता है। शरीफा तसीर के लिहाज से गर्म तर खुश ज़ायका फल है। ये दिल को ताकत देता है, घबराहट और चिड़चिड़ापन दूर करता है, पेशाब की तकलीफ दूर करता है, वहम दूर करता है, पेचिस में फायदेमंद है, खून की नालियां साफ करता है, मैदे के अल्सर, दिमाग और पट्ठों के लिए सूदमंद है। शहतूत का खूबसूरत और फरत बख्श फल खाने से तबीयत एकदम बहाल हो जाती है। इसकी सैकड़ों अकसाम है। शहतूत का फल बीमारियों से पैदाशुदा गंदे मादे खारिज करता है, जिगर का फेल दुरुस्त करता है, खून साफ करता है, फोड़े, फिंसियां, गले की तकलीफ, खन्नाक जैसी अमराज के लिए सूदमंद है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन को खत्म करता है। खांसी, मुंह के छाले, गले के गदूद, आवाज का भारीपन के लिए शहतूत मुजरब जाना जाता है। केले में पोटाशियम होती है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है, कुव्वते मदाफत और भूख बढ़ जाती है, खुश्क, खांसी और आंतों का फेल दुरुस्त करता है, दस्त और पेचिस में फायदेमंद है, रंग साफ करता है। कच्चे केले के सूफ से मैदे का अल्सर ठीक होता है। नक्सीर वाले को केले का मिल्क शेक पिलाएं। वर्म और सोजश में केले के पत्ते बांधने से आराम आ जाता है। खारिश और गंज में लीमू या सिरके के साथ इसका लेप करें, नींद के लिए सूदमंद है। ग्रेप फ्रूट तसीर के लिहाज से सर्द तर है। ये जोड़ों के दर्दों में बहुत मुफीद है। इसके खाने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं, जिस्म से फासद मादे का अखराज करता है, मोटापा कम करता है। इसके छिलके साया में सुखा लें। सर्दियों में जुकाम में छिलकों को चाय में डालकर पिएं, सर्दी की तकलीफ दूर करता है। गैस, जलन, भूख कम, मतली हो, प्यास लगे तो रस या चकोतरे की फांकें थोड़ा सा नमक लगाकर खाएं, इंशाअल्लाह ताला फाका होगा। लीची तसीर के लिहाज से सर्द तर है और एक खुश जायका, फर्त बख्श और लजीज फल है। ये प्यास बुझाती है, दिलो दिमाग के लिए मुफीद है और ग़िज़ाइयत का भरपूर खजाना है। पेशाब की जलन दूर करती है, दांतों को ताकत बख्शती है, अमराज़े कल्ब के लिए मुफीद है। नाशपती तसीर के लिहाज से सर्द तर है। इसमें मौजूद पोटाशियम खून की गर्मी दूर करता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत करती है, कब्ज कुशा है, मसाना की गर्मी दूर करती है, पत्थरी के अखराज के लिए फायदेमंद है, यरकान और दिल डूबता हो तो ठीक हो जाता है। शकरकंदी तसीर के लिहाज से गर्म तर है। शकरकंदी आलू की बहन है। इसमें नशास्ता ज्यादा होती है, मेहनत करने वालों के लिए फायदेमंद है, ताकत देती है और वजन बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। सिंगाड़ा दिल की कमजोरी, खांसी और दस्तों में मुफीद है, पेट के अफाल को दुरुस्त रखता है, कुव्वते बा के लिए सूदमंद है, मनी को गाढ़ा करता है। जापानी फल, इसके खाने से मैदा और जिगर के अफाल दुरुस्त होते हैं। डेंगू बुखार के मरीजों को खिलाने से इसके खून में प्लेटलेट्स की मकदार नॉर्मल होती है और एचबी के लिए सूदमंद है। अमरूद तसीर के लिहाज से सर्द तर है। अमरूद बहुत ही जायका बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। अमरूद का गुद्दा चावल और गंदम से तकरीबन 1/3 ज्यादा ग्लूकोज अपने अंदर रखता है। यही वजह है कि ये पेट भरने और जिस्म की जरूरत के मुताबिक ईंधन का काम करता है। अमरूद बेशुमार तिबी करिश्मात का हामिल है। मुंह की सोजन और मुंह की बदबू के लिए सूदमंद है, मतली और कब्ज के लिए मुजरब है। अमरूद के साथ पिसी हुई अजवाइन का इस्तेमाल खांसी और बलगम के लिए सूदमंद है। लीमू तसीर के लिहाज से सर्द तर है। कै और मतली में लीमू काट कर थोड़ा सा नमक लगाकर चटाएं। लेमन का जूस, गुलाब का अर्क हम वजन में 1 चम्मच ग्लिसरीन या शहद मिलाकर लगाने से कील और महासे खत्म हो जाते हैं। लीमू का रस पानी में मिलाकर पीने से गर्मी दूर होती है, डिहाइड्रेशन कंट्रोल हो जाती है, बुखार कम होता है। दांतों की बीमारी मांसखोरा में अर्के गुलाब में रस मिलाकर पिलाएं। जिगर व तिली के लिए सूदमंद है, मोटापा दूर करता है, विटामिन सी का मरकब है। आंवला खालस हिंदुस्तानी फल है। ये उल्टी और कै को रोकता है, मैदा की गर्मी को मिटाता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। ये जिस्म में मादनियात को जज़ब करने में मदद देता है, भूख बढ़ाता है। आंवला के अर्क में लीमू का अर्क और शहद को 1 कप पानी में हल करके निहार मुंह पिलाने से चंद हफ्तों में भूख बढ़ जाती है।
मीठे अनार का रस 2 चटांक, तुरश अनार का रस 2 चटांक, सेब का रस 1 पाव, लीमू का रस 1 पाव, सब्ज पुदीने का रस 1 पाव, कूजा मिश्री 2 सेर। इन सब चीजों को मिलाकर शरबत तैयार कर लें। 3-3 तोला सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये शरबत मैदा और जिगर की खराबियों को दूर करके भूख लगाता है और हैजा के दिनों में मुफीद है। अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अनार में पॉलीफिनोल्स की मकदार बहुत ज्यादा है जो खुलियात को नुकसान पहुंचाने वाले मालिक्यूल्स का मुकाबला करते हैं। अनार के दानों में फाइबर की मकदार काफी ज्यादा होती है। फाइबर की ये किस्म निज़ामे हाजमा को सेहतमंद रखती है। विटामिन सी के हसूल का भी अच्छा जरिया है। अनार के दानों से भरा आधा कप में 5 ग्राम फाइबर होता है और 9 मिलीग्राम विटामिन सी जिस्म का हिस्सा बनता है। विटामिन सी जिस्म के मुतअद्दिद अफ़ाल जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए अहम किरदार अदा करता है जबकि मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाता है। अनार जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड के असर को बढ़ाता है जिससे खून की शरियानें कशादा होती हैं, जिस्मानी वर्म की सतह में कमी लाने और मुतअद्दिद अमराज बशमूल अमराज़े कल्ब डायबिटीज के खतरे को कम करता है। अनार का जूस पोटाशियम के हसूल का अच्छा जरिया है। पोटाशियम असाबी अफाल के लिए बहुत अहम है। अनार खाने से गुर्दों में पथरी की रोकथाम होती है। टाइप 2 के मरीज अगर अनार का जूस पीना शुरू कर दें तो इंसुलिन की मज़ाहमत में कमी आ सकती है। दिमागी वर्म को भी कम करता है। खरबूजा खरबूजा तसीर के लिहाज से गर्म तर है, यरकान और कब्ज दूर करता है, रुके हुए पेशाब को खोलता है, पसीना लाता है, फीड करवाने वाली माओं के लिए बेहतर है, बच्चे की फीड को पूरा करने में मदद देता है। गाजर गाजर तसीर के लिहाज से सर्द तर है, विटामिन की ज्यादती की वजह से बेहद मकबूल है, तेज धड़कन, खून पैदा करने, दिमाग और मैदे को ताकत के लिए सूदमंद है। बेर तसीर के लिहाज से सर्द खुश्क है, खून साफ करता है, आंखों की बनाई को बढ़ाता है, भूख लगाता है, प्यास मिटाता है। सरदा तसीर के लिहाज से मुतदिल तर है, दिल और दिमाग, गुर्दे और मसाने को तकवीयत पहुंचाता है, जिस्म में रतूबत बढ़ाता है, पेशाब आवर और जलन को कम करता है। जामन तसीर के लिहाज से सर्द खुश्क है, दांतों को मजबूत और खून साफ करता है, मैदा जिगर को कुव्वत बख्शता है, गर्म मिजाजों के लिए मुफीद है, बालों को गिरने से रोकता है, पेशाब की ज्यादती और मसाने की कमजोरी के लिए बेहतर है, डायबिटीज के लिए नहायत सूदमंद है। खुबानी तसीर के लिहाज से गर्म है, कब्ज कुशा है, जिस्म को ताकत बख्शती है, प्यास की शिद्दत, बुखार, बवासीर और आंतों के सतरे दूर करती है, पेट के कीड़े हलाक करती है। गन्ना तसीर के लिहाज से सर्द तर है, खाने को हजम करता है, जिस्म को मोटा करता है, गन्ने के इस्तेमाल से पेशाब खुल कर आता है, पेट की गर्मी और जलन को मिटाता है, जरियाने खून को रोकता है, बादी और बलगम की ज्यादती में इसका इस्तेमाल मुज़र है, यरकान के लिए मुफीद है, दांतों को मजबूत करता है। तरबूज गर्मी के असरात से महफूज रखता है, यरकान के लिए मुफीद है, मैदा के अल्सर के लिए सूदमंद है, विटामिन ए का जखीरा है, विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए बेहतर है, डिहाइड्रेशन से बचने में मदद देता है। आम सबसे आखिर में आम का जिक्र करता चलूं। जैसा कि आप जानते हैं आम फलों का बादशाह तस्वर किया जाता है। ये हर छोटे बड़े की पसंद है और अपनी मिठास के लिहाज से हर दिल अजीज फल है। मकवी और जूद हजम है, मजाज के एतबार से गर्म तर है, नया खून पैदा करता है, जिस्म को मोटा करता है, राफे कब्ज और पेशाब आवर है। आम के बाद दूध पीने से कुव्वत मदाफत बेहतर होती है, दिल और दिमाग और पट्ठों को ताकत देता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक आम में 20 से ज़ायद विटामिन, मिनरल और मादनी अज्जा पाए जाते हैं। आम कैंसर और दिल की बीमारियों से महफूज करता है, जिल्द के लिए अच्छा है, मोटापा को कम करता है, बिनाई को तेज करता है, कोलेस्ट्रॉल के तवाज़न को इत्दाल पर लाता है, अनीमिया की बीमारी में मुफीद है, दमे की बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए, हड्डियों को मजबूत करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैरा।